What's up everyone, Praful here and welcome to a special edition of Breakfast with Traders live from Gross headquarters here in Bengaluru. In this episode, we host 40 passionate traders for an exclusive in-person event. Today's guest, Mr. Rakesh Pujara, brings over 25 years of market experience and is probably one of the early adopters to implement non-correlated trading systems. He shares his timeless wisdom, offering insights on various market strategies. And this time, the breakfast table is bigger than ever, as we invite our audience to join in for breakfast, a Q&A session, and networking with fellow traders, all within the dynamic setting of Gross office. Let's get started and stay tuned for the next Breakfast with Traders event where you could be a part of the action as well. So Rakesh bhai, thanks for doing this. Thanks, Praful, for having me. Rakesh ji here is a veteran trader and an investor who has been in the markets for more than 25 years now? Yes. 25 years. मतलब और 6 साल हो गए तो मेरे उम्र से भी ज़्यादा हो गए experience. And he has managed different roles. He's been into diamond business, he's been into cost and accounting, and then he has managed a prop desk. Now he runs his small case, he's building a business around it. So give it a round for Mr. Rakesh. Thank you. So thanks a lot, Rakesh ji, for doing this. Yeah, sure, definitely, and So thanks for having me. It's going to be a candid conversation. Absolutely. कभी-कभी bouncer भी आ सकता है. So I am a good player. Don't worry. Yorker भी आता है. Yorker भी आता है. तो कैसे राकेश जी, मतलब how did you get into the markets? So market, my first encounter was in 1991, December 1991. हर्षद मेहता के टाइम. हर्षद मेहता के टाइम बोरो करके leverage कर लिया position. I was a student there, like last year of BCom. I was the student there, and friends were dabbling into market, and I also got lured into it, and पैसा बोरो कर लिया और market में लगा दिया. So by the time we came back from vacation in April, capital was wiped off. So, नहीं, ये मुझे ये बताइए, अभी तो सोशल मीडिया है, एक we get lot of Instagram reels, Yes. कोई भी आके बोल देता है Yes. Silicon overnight rich. उस जमाने में कैसे information transfer see, I कैसे come from Bombay. Okay, Mumbai has that culture of stock market. So every other Gujarati guy is either into stock market, investing or trading, or so stock market was not new to me even in 1990s. Like we were aware about the potentials of stock market even then at that time. फैमिली के थ्रू मिली थी? Family के through नहीं. I had no background in stock market. So one of my friends started dabbling into it. So I just hooked along with him. And since I'm from a commerce background, I knew what is the stock market, what is a joint stock company, how the stocks are listed and how they are traded and all that. And pretty जब भी 1991 में when I encountered the market for the first time, तभी तो outcry system था, रिंग का जमाना था. 94 से फिर ऑनलाइन आया. So like we used to give order in the evening. दूसरे दिन रात को कंफर्मेशन मिलता था, आज मैंने आपको ऑर्डर दिया, वो भी सब ब्रोकर को तो एक्सेस ही नहीं था. आपने 100 में एज ए ब्रोकर एग्जीक्यूट किया, मुझे बोलोगे 102 में आया, 104 में आया. वी डिडंट हैव एनी कंट्रोल over that. So but still वहाँ पर जूस इतना था मार्केट में, you had a good chance of making easy money then also. बट मुझे ये बताइए राकेश जी, अभी तो बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो, राइट? लाइक आप फोन ओपन करोगे, अनलॉक करोगे तो विद इन अ सिंगल क्लिक यू कैन enter or exit a trade. But at that point the barrier of entry was quite high. Quite high. It's an elite club of few brokers. But irrespective of that, you put on such a leveraged position. So yeah, because I come from a very humble background, and we had that urge to come out of the poverty. Earlier the better. And stock market, of course, ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा. लेकिन it put me a decade behind. That particular incident of April 1992 when the market wiped off my capital, it took me at least a decade behind. A decade behind? A decade behind. So I had to undergo a lot of side hustles, a lot of jobs and all that. And finally in 2000, 2001, I could come out of the debt I had incurred at that time. So it took me a good amount of decade. And 1999, I joined a broker's office, 1999. And then I saw the market with closed quarters, like what does it look like? And then I started playing safe. I started doing arbitrage, and I started developing prop desk there and all that. And I was always part of the incentives of the trade. Like I used to recruit traders, make them trade, train them. And I was a part of incentives. I was not actively trading then, in 1999, but I was playing safe. Like, क्योंकि एक बार पैसा गया था, तो I had that
money wound in the बट mind. जनरली जब पैसे जाता है तो पीपल गो इनटू दिस रिवेंज मोड. Yeah. मार्केट ने पैसे लिया तो मार्केट ही मुझे वापस देगा. No, I was not in a revenge mode. I went into inquisitive mode. What is it about this market? कि मैं लोगों ने पैसा तो बनाया है, लोग यहाँ से पैसे तो बना रहे हैं. What is it that I did wrong and I should be doing it right? So I was more on a course correction में mode and कभी मैंने अपना जो प्राइमरी इनकम था उसको कभी सेक्रीफाइस नहीं किया. तो प्राइमरी इनकम यूज्ड टू कम फ्रॉम अ जॉब at a broker's house, and I was a finance manager there. Then I started developing a prop desk there gradually. I mean, I like where this story is going because maximum जो लोग ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में पॉडकास्ट सुने हैं ना, वहाँ पे लोग आके बोलता है कि मेरा 1 लाख था, उड़ गया, फिर से 1 लाख डाला, उड़ गया, फिर से 1 लाख डाला, उड़ गया, और चौथी बार मैंने बनाया. बट यहाँ पे लाइक वी आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन वेयर यू रियलाइज दैट ओ देयर इज रिस्क Yes, yeah, एंड आई नीड टू I need to appreciate the risk. Yes, absolutely. And I need to respect that risk. Absolutely. So I often call myself not a trader, not an investor, or not an entrepreneur. I'm primarily, I would like to call myself as a risk manager. So I always constantly keep on evaluating the risk that happens on an ongoing basis and what I should be doing to survive the next day. कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जैसे उस दिन ट्रम्प का ट्वीट आ गया रात को और 1200 माइनस वाला 1200 प्लस हो गया और इमेजिन यू हैव अ नेकेड ऑप्शन सेलिंग पोजीशन व्हाट विल हैपन टू यू. इट कैन रूइन योर लाइफ. सो आई प्रिज्यूम द वर्स्ट विल हैपन एट द वर्स्ट टाइम एंड स्टिल आई शुड बी इन द गेम. सो मेरा पूरा जो अप्रोच है वो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा रहता है. You talked about the risk of ruin here, right? Yeah. But in your first bet, even you faced a significant blow, which Yeah. was kind of very hard to recover. Absolutely. तो वो 5, 6, 7 साल में हाँ. explain to me like what was going on in your head. सो ग्राइंड तो ये था सबसे पहला तो जिससे पैसा लिया है उसको कैसे लौटाना है. अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसा आपको कौन देता है. आपका जान पहचान वाला रहता है, रिलेटिव्स रहते हैं, आपका इंटरेस्ट का मीटर भी चालू है, आपको घर भी चलाना है, आपको जो पॉवर्टी आपके पीछे पड़ा है 25 साल से उससे भी तो बाहर निकलना है. सो देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स वेयर यू आर फाइटिंग एंड आई एम अ फाइटर, आई एम अ बोर्न ऑप्टिमिस्ट, सो आई डोंट गिव अप ऑन होप्स. So deep down in my mind, I knew I'll come out of it. It might take little time, but I will come out of it. That underlying faith I have never lost in my life. Ups and downs बहुत आते हैं, लेकिन I have that faith in my abilities to bounce back, and I have always bounced back, and hopefully आगे भी ऐसा ही करेंगे. So I'll keep that mindset going. But let's say जब वो hit आया आपको, I mean I'm talking about the day when you came back from that vacation and you see that like your capital is wiped out. Didn't you get that revenge feeling like at that point? At least बाद में वो जो emotions adrenaline उतरता है तो then of course नहीं, रिवेंज फीलिंग नहीं आया मुझे. और सबसे पहला तो प्रेशर ये आया कि ये पैसा कैसे लौटाएंगे. तो बाकी सब इमोशन तो दब गए नीचे ही. पहला प्रेशर ये आया कि भाई अगला महीना होगा तो आपको 4,000 रुपये तो ब्याज में देना है. और 92 में मेरा पहला जॉब है ना 1,500 रुपये का था. एंड ये पैसा कितना लौटाना था? 2 लाख रुपये. अरे 2 लाख रुपए लौटाने हैं, 1,500 का जॉब है आपके पास और 4,000 तो खाली ब्याज देना है. फॉरगेट अबाउट प्रिंसिपल. सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स्ट पोजीशन. मतलब इससे ख़राब क्या हो सकता है. और घर पे किसी को कुछ पता नहीं है, घर पे बताना भी नहीं है क्योंकि उनको स्ट्रेस आ जाएगा. तो एक 2 लाख का डेट, 1,500 का जॉब, 4,000 का ब्याज, वहाँ से आपको बिल्ड करना है आपका पोजीशन. तो रिवेंज पे तो बिल्ड नहीं हो सकता है. और रिवेंज करने के लिए आपके पास कुछ आर्सेनल भी तो चाहिए, कैपिटल चाहिए. आप रिवेंज लोगे कैसे? आपका पोजीशन लेने के लिए पैसा ही नहीं है आपके पास. तो आपको एक फिक्स इनकम मोड में जाना पड़ेगा जहाँ से घर भी मैनेज कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, थोड़ा ग्रोथ भी होता है, साइड हसल भी कुछ ना कुछ कर लेते थे. तभी इसका कमीशन मिल गया, उसका कमीशन मिल गया. तो ऐसे करके धीरे धीरे बिल्ड किया. तो इसके लिए एक डिकेड लग गया. वो 2 लाख को वाइप ऑफ करते करते एक डिकेड लग गया. बट विथ इंटरेस्ट सबको चुकाया. ऐसा नहीं कि किसी का एक भी पैसा बाकी रखा. आपको लगता है आजकल के जो मार्केट में आता है उसमें इतना सब्र है? They're pressurizing themselves too much. What they are not giving themselves is time. So when the time is on your side, all things will fall in place. If you hurry into a situation, if you want to do it like today or maybe yesterday you should have done it, then you're putting too much pressure on yourself and there are possibilities कि भाई प्रेशर के कारण आपका हो सकता है कि पावर बाहर भी आए और आप जल्दी प्रोग्रेस कर जाएं. लेकिन मुझे लग रहा है कि एवरीबॉडी शुड गिव देम सफिशिएंट चांस एंड सफिशिएंट टाइम देना चाहिए अपने आप को.
क्योंकि ये जर्नी कुछ आसान नहीं है। आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, लॉयर बनते हो, तो 12-15 साल का जर्नी है, तब जाके फर्स्ट प्रैक्टिस या तो फर्स्ट क्लाइंट मिलता है आपको। लेकिन आपको फर्स्ट ट्रेड सीधा डाल देना है यही लाइन में। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि पीपल शुड गिव देमसेल्फ सफिशिएंट टाइम। लोग बहुत बहुत घाई में है आज का जनरेशन, तो दैट इफ थिंग्स गो रॉन्ग यू विल बी लाइक डिकेड्स बिहाइंड। तो थोड़ा फर्म फुटिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ना, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल इंक्लूडिंग माई ओन सन, कि भाई गिव योर सेल्फ टाइम, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ कि मुझे आज ही परफॉर्मेंस देना है, मुझे ये साल प्रॉफिटेबली चाहिए, कि 5 साल में तो इतना पैसा बनना ही चाहिए। ये क्योंकि मार्केट इज़ नॉट ऑब्लाइज टू गिव यू मनी। ओके, आपके कंट्रोल में आपका लर्निंग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका ट्रेडिंग सेटअप है, आपका एजुकेशन है, आप क्या सीख रहे हो, मार्केट से क्या सीख रहे हो। और अभी तो सोशल मीडिया के कारण काफ़ी लाइफ ईजी हो गया है लोगों का, जो लर्निंग है वो कर्व काफ़ी शॉर्टन हो गया है, तो वो फ़ायदा है, डेफिनेटली फ़ायदा है वो। बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है ना। मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफ़ी स्क्रीनशॉट का ज़माना चल रहा है अभी तो स्क्रीनशॉट काफ़ी कम हो गए, लेकिन स्क्रीनशॉट देख के भी फोमो होता है, और ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इंस्पिरेशन कम, डिप्रेशन ज़्यादा आ रहा है लोगों को। मोस्टली माई जनरेशन में ऐसा होता था कि कोई किसी को प्रोग्रेस होते हम देखते थे तो इंस्पायर होते थे, रादर देन गेटिंग फोमो और गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट। लेकिन आज पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है यंगस्टर्स को। मतलब एक्सपोजर इतना है कि लाइक हमको पता चल रहा है कि अमेरिका के कॉर्नर में बैठ के बंदा क्या कमा रहा है। absolutely, तो वी आर कंपेयरिंग Yes, somebody yeah. like at our stature to somebody like who has absolutely no relevance to our life. So there are two sides to it. You take inspiration from them, or you feel FOMO and go under depression. So I would prefer the first path. You get inspired by people. Okay, when you see a screenshot, it should instill that inspiration into you कि मैं भी कैसे ये करूँ, ये बंदे ने कैसे किया। तो shortest path to successful road is to emulate or maybe copy somebody who is already successful. तो मेंटरिंग बोल सकते हैं, या उसको आप कॉपी बोल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। जैसे मेंटर अगर कोई मिल जाता है आपका, तो जर्नी एकदम शॉर्टन हो जाता है। इफ़ यू ट्राई एंड कॉपी हिज पाथ के कैसे किया, तो जल्दी आपको रास्ता मिल सकता है। तो राकेश भाई, विल टॉक अबाउट योर द फर्स्ट स्टिंट ICWA। तो मैं सुना हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग क्या होता है, बिकॉज आई एम श्योर लाइक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आल्सो डोंट नो अबाउट दिस। So it's a professional degree. It's passed by Act of Parliament. I see the Cost and Works Accountant Institute. तो back then दो ही professional degree थी commerce से mostly. People used to prefer chartered accountant. I wanted it to be a chartered accountant, but unfortunately ऐसा हुआ जब भी मैंने 12th पास किया तभी रूल चार्टर्ड अकाउंटेंट का थोड़ा चेंज हो गया कि आप 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सकते, आउट यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट उसके बाद कर सकते हैं। तो ओनली प्रोफेशनल डिग्री लेफ्ट to be done was ICWA, which I could have pursued along with my graduation. And my next door neighbor was doing ICWA, तो I also did ICWA. तो इतना कोई अवेयरनेस नहीं था। एक अंडरलाइन ये बिलीव था कि अगर पॉवर्टी से बाहर आना है और सिक्योर वे में आना है, तो फर्स्ट थिंग इज टू सिक्योर अ डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री। एटलीस्ट योर लाइवलीहुड इज सिक्योर्ड, आपका फैमिली को आप डिसेंट लाइवलीहुड दे पाओगे। तो वो एक दिमाग में था कि एक सिक्योर्ड जॉब होना चाहिए और एक लाइवलीहुड बेटर होना चाहिए पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए। तो डिग्री मुझे करना था प्रोफेशनल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल का वेट करने का मेरे पास कोई कैपेसिटी था नहीं, इसलिए मैंने ICWA चूज किया। जो तो लॉस हुआ, हाँ जी, ये लेने से पहले या लेने के बाद? सो दिसंबर 91 में मैंने फाइनल 1 क्लियर किया था ICWA का। ये लॉस हुआ, बाद में आई टुक 6 अटेम्प्ट टू क्लियर माय फाइनल 2। तो एवरी 6 मंथ आई यूज्ड टू अपीयर, क्योंकि बाद में जॉब भी लग गया, पैसे का भी प्रेशर था, तो पढ़ाई भी नहीं हो पाता था। तो फाइनली 6ठे अटेम्प्ट में, वो भी कैलकाटा जाके मैंने एग्जाम दिया, तब जाके क्लियर हुआ। तो 6 अटेम्प्ट लगा, लेकिन डिग्री तो लेना था, वो पक्का था। कोई लॉस का इफेक्ट था? लॉस का इफेक्ट यस, प्रेशर था, और जॉब भी लग गया था, तो आपके पास टाइम भी नहीं बचता इतना, तो वो भी था। तो जॉब मजबूरी में लेना पड़ा? जॉब तो डेफिनेटली मजबूरी में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक कैश फ्लो चाहिए हर महीने, घर भी तो चलाना है, ब्याज भी भरना है, रिपेमेंट भी करना है, तो जॉब तो करना ही है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। और हाई पेइंग जॉब कोई ग्रेजुएट को देता नहीं है, तो यू नीड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। नेचुरली हाई पेइंग जॉब तो नहीं मिलते, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो तो यू गेट अ डिसेंट जॉब। सो आउट ऑफ दैट अर्ज
to get a decent अब job. तो मान सकता हूँ बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो डिग्री होल्डर्स इतने कम थे कि मिल जाना चाहिए। नहीं, लेकिन बाय दैट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या कॉस्ट अकाउंटेंसी हो, आईआईएम हो, एमबीए हो, पॉपुलर होने लगा था। तो वहाँ मतलब अगर आपको समझो सालाना 36,000 मिल रहा है या 50,000 मिल रहा है, 60,000 रुपया मिल रहा है, अगर आप एमबीए हो तो तभी भी 3 लाख 4 लाख मिलता था। तो आपका इनिशियल स्टार्ट अच्छा हो जाता था। तो कुछ कुछ एमबीए प्रेफर करते थे, तो आई प्रिफर्ड आईसीडब्ल्यू, क्योंकि 3 साल में हो सकता था ग्रेजुएशन। एट द एज ऑफ 21 आई कुड हैव बीन अ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो बाकी 21 के बाद और 3 साल नहीं देना है I'm कमाने के। curious, like what's the difference between chartered accountant and cost accountant? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कॉस्ट अकाउंटेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है, उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको रेगुलेट करते हैं वो लोग, उसको ऑडिट करते हैं। वहाँ पर आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे अराइव होता है, कैसे मार्जिन रखना, वो सब कैलकुलेशन होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में बेसिकली ऑडिट्स है, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है। तो काफ़ी ओवरलैपिंग भी है, सब्जेक्ट्स काफ़ी ओवरलैपिंग है, 50-60-70% सब्जेक्ट्स ओवरलैप। एंड वो जमाने में आईसीडब्ल्यू क्लियर करना ज़्यादा डिफिकल्ट था कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट 2% ही आता था तभी। अगर 100 बंदे अपियर हो रहे तो खाली 2% ही पास होते थे। तो आप कौन से इंडस्ट्री में काम किया इसके बाद? सो इसके बाद मैंने एक्सपोर्ट्स में काम किया। फिर मैंने मैं हांगकांग रहा 6 महीना डायमंड इंडस्ट्री में। हांगकांग जाने के कारण थोड़ा कैश फ्लो भी बढ़ गया, तो दैट हेल्प मी रीपे माई डेट। फिर मैंने मीडिया में काम किया, फिर ब्रोकर की ऑफिस में काम किया, और फाइनली 1999 में मैंने ब्रोकर का ऑफिस ज्वाइन किया। वहाँ से मेरा मार्केट का जर्नी अभी कंटिन्यूस है। तब से मार्केट के साथ अभी 99 से मैं एकदम कंटिन्यूस टच में हूँ। वहाँ पे क्या कर रहे थे ब्रोकर के ऑफिस में? सो ब्रोकर की ऑफिस में आई जॉइंड एज अ फाइनेंस मैनेजर अर्लियर। अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, जो एक फाइनेंस Back office? बैक ऑफिस, प्योरली बैक ऑफिस। बैंक गारंटीज लाना, कंपनी के लिए लोन्स अरेंज करना, तो वो सब मेरा काम था। सो ये करते करते आई हैड एक्सेस टू डीलिंग रूम ऑल्सो, तो आई यूज्ड टू गो टू डीलिंग रूम, सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो आई स्टार्टेड थ्रोइंग सजेशंस टू द मैनेजमेंट, सर अपन ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यहाँ से पैसा सीबीटी आ गया था उस टाइम पे? पढ़ में। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग आ गया था? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग आ गया था, 94 से ही आ गया था। एंड 99 में तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट नहीं था, एनएससीबी का सेटलमेंट अलग था, और कैरी फॉरवर्ड वायदा होता था तभी, एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे एंड ऑल दैट। तो वो जमाना था, और आई सो द आर्बिट्राज बिटवीन एनएससी एंड बीएससी। हाँ, तभी केतन पारेख का तेजी भी चालू था, 99-2000 की बात है। K12, हाँ जी, K10, K10, हाँ। K10। तो वहां पर एक वीक में आपको 2% मिलता था, फ्री ऑफ रिस्क, सिर्फ आर्बिट्राज से? आर्बिट्राज। आपको इन्वेस्ट करना है, हर वीक में 2% आपको मिलता था। तो मुझे मेरा ये मतलब रिस्क सिर्फ भी है। एक्सचेंज आर्बिट्राज? एक्सचेंज यहाँ एनएससी से लो, बीएससी में भेज दो। अच्छा। आप फ्राइडे यहाँ सेटलमेंट है, ट्यूसडे वहाँ सेटलमेंट है। फ्राइडे यहाँ स्क्वायर करो, वहाँ ले लो एनएससी में, ट्यूसडे वहाँ से बेच दे, यहाँ ले लो। तो ये प्योरली आपका हेज बेट है, जहाँ कोई रिस्क नहीं है। बट ये जनरली आर्बिट्राज बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। लाइक व्हाट वाज स्टॉपिंग फ्रॉम पीपल टू एंटर मोर एंड मोर कैपिटल इनटू तो दिस? एक तो अवेयरनेस नहीं था, इट वाज एन एलिट क्लब बैक देन, मतलब काफी लोग, कम लोग को अवेयरनेस था, कैपिटल भी लिमिटेड था। बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ब्रोकिंग हाउस, आपको सो आई हैड दैट एक्सेस टू टर्मिनल, और मेरा मैथ्स, अकाउंट्स, वो सब स्ट्रांग है, कैलकुलेशंस एंड ऑल। तो हम तो दिख रहा है ना, यहाँ 100 में मिल रहा है, वहाँ 102 में बिक रहा है, तो ये तो प्योर आर्बिट्राज है। तो एक्सचेंज का रेगुलेशन सब अपने को अवेयरनेस का, एक्सचेंज गारंटीड है ट्रेड, तो काउंटर पार्टी रिस्क भी तो नहीं है, खाली आपको कैपिटल अरेंज कर रहा है। सो दैट वाज माय सेकंड राउंड ऑफ बोरोड कैपिटल। आई बोरोड कैपिटल, बट दिस टाइम आई वाज प्लेइंग सेफ, and I was making 2% a week on the basis of arbitrage. So that kind of accelerated my journey of making money in a safe way, rather than going a naked bet or going leverage or something like that. So when you found this arbitrage opportunity, did you tell your broker or सिर्फ आपके कैपिटल से छुपा छुपी? नहीं, तो we used to do it for our clients as well. ब्रोकर को भी बताया, और काफी हम लोगों ने डीलर भी बिठाए। But then word spread out नहीं हो? स्प्रेड आउट होते हैं, लेकिन देखो काफी लोग बिलीव नहीं करते यार। 2% कौन देता है यार रिस्क फ्री, वो भी। लेकिन देखा, ये तो 3 महीने दे रहा है, 6 महीने दे रहा है, 12 महीने दे रहा है, और बाद में केतन पारेख का क्रैश भी आया, तो वो आर्बिट्राज भी खत्म हो जाता है। बाद में यूनिफॉर्म सेटलमेंट आ गया 2001, एनएससी बीएससी का सेटलमेंट यूनिफॉर्म हो गया, तो यूनिफॉर्म होने के कारण आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। सो दैट वाज अगेन अ चेंज। अभी जैसे अभी जीरो डीटी खत्म हो गया, तो वो भी चेंज। तो मार्केट में ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज। वी हैव सीन सो मेनी चेंजेस, यूनिफॉर्म सेटलमेंट से लेके डिमेटेरियलाइजेशन से लेके सब देखा है हम लोग ने। ऑनलाइन ट्रेडिंग से लेके सब चालू। अभी जैसे अभी मोबाइल ट्रेडिंग इज द वे टू गो, और तो काफी चेंजेस होते हैं मार्केट। मैं रिकमेंड नहीं करता, बट यस,
नहीं रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अभी अभी जो नया जनरेशन है उनको यही सूट कर रहा है, आप समझो मेरी बात। और काफी लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है ना, हाँ, they take the bets of a full time trader without being a full Yeah, so they are playing a game against professionals, and if you play a game against professional and if you are not full time, you are likely to lose. That is what is happening with retailers right now. yeah. So unfortunately, लेकिन उसमें से भी देखो कुछ कुछ लोग, जैसे मैं कुछ सीख के आया ना, मैंने भी तो लॉस किया था। मैंने से काफी लोग हैं जो इनिशियल लॉस करते हैं, लेकिन उसमें से सीखते हैं। No, that's inevitable. इनोवेटिव, और आप जो पुरानी मिस्टेक है उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो। तो that urge to learn has not even gone today. Like I still have a research oriented mind. I keep myself updated on every single thing that happens in the world, including history, including geography, including I mean, that's geopolitics. the beauty of markets, no? It's Yeah. always It makes keeps you on the you- road. And I believe in that Charlie Munger mental model of Lollapalooza करके उनका एक मॉडल है, which say कि if you specialize in multiple field and you have knowledge of multiple field, everything will converge one day and आपकी लाइफ में ऐसा इफेक्ट आएगा, which is called Lollapalooza, जो भी बोलते हैं उसको, वो इफेक्ट आएगा और आपका कर्व सीधा ऊपर चला जाएगा। Absolutely. I don't remember the name of the author, but there was this book, how a generalist always gets rewarded over a niche specialist. Yes, absolutely. So बीच में ऐसा चला था कि अभी हाँ, ना याद आ गया, रेंज। मास्टर ऑफ वन करो, मास्टर ऑफ वन करो, लेकिन अभी थोड़ा अभी जमाना चेंज हो रहा है। जैक ऑफ ऑल का जमाना अभी चल रहा है। master Yes, of I one. think in this age where, you know, there is no, I mean, I don't know, like, yes, there is still a demand for like niche specialists, but on a macro level, generalists get paid more, generalists get rewarded more. आज आप देखो ना, जिसको जियोपॉलिटिकल का नॉलेज है, हिस्ट्री का नॉलेज है, दे आर एबल टू रीड द माइंड्स ऑफ वर्ल्ड लीडर कि इसका अगला मूव क्या होगा, एंड दे आर एट एडवांटेज। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, मैथ्स का नॉलेज है, अकाउंट्स का नॉलेज है, हिस्ट्री का नॉलेज है, जियोग्राफी का नॉलेज है, जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज है, एंड आज के जमाने में साइकोलॉजिकल नॉलेज भी नहीं चाहिए, लाइक यू जस्ट वांट हैव टू नो सरफेशियल, एंड वो जो कन्वर्जिंग का है ना टूल आ गया है, हाँ, तो the tool बेसिकली can converge all those things for you. चार्ली मंगर ये भी रिकमेंड करते हैं कि जो बड़े बड़े एरिया है, जैसे मेडिसिन हुआ है, उसका उसका मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सी यू कैन नॉट बी मास्टर इन एवरीथिंग, बट मेन उसका जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसका जो क्रक्स है वो पता होना चाहिए, तो आपको काफी हेल्प करता है वो चीज। तो उसके बाद जैसे आपने आर्बिट्राज में पैसे बनाए, दो यू से दैट वो रिस्क फ्री मनी था, इन अ वे यू टुक अ बेट। Yeah. जब बेट है तो देयर विल बी अ रिस्क, Yes. एंड रिस्क इज जनरली समथिंग दैट वी कैन नॉट कॉम्प्रहेंड, वी कैन नॉट सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Right. तो आपको लग रहा था कि हाँ काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, एक्सचेंज रिस्क नहीं, बट देयर वाज सम रिस्क व्हिच यू माइट हैव So मिस्ड। people, क्योंकि वहाँ क्राइसिस हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, तो पीपल स्टार्टेड परसीविंग दिस एज अ रिस्क, एंड डीप डाउन आई न्यू कि एक्सचेंज डिफॉल्ट नहीं करेगा। ओनली रिस्क दैट टाइम वाज एक्सचेंज डिफॉल्टिंग। ओके, अगर एक्सचेंज ने डिफॉल्ट कर दिया, देन योर मनी इज गॉन। Now, where I was going is, you again took a bet. Yeah. From being, you know, like without placing any bet for like 10 years, Right. till you became financially unburdened from your debt and all those things, Yeah. you again ventured into betting. Yes. Once that arbitrage stopped, did you continue to take bets in some other domains, or you again went back to being So then I turned myself into I wore a hat of entrepreneur. I started developing the proprietary desk. Okay, I had a lot of friends who were doing extremely good trading the market. So I started approaching them. I asked them to work for my firm, and I started collecting team. I started making team leaders, and I started doing this in 2002-03, and at the end of 2007-08, like I was heading that desk, and there were 125 active traders. So while I was learning technicals in the market in 2004, रात को 6:30-7 को ऑफिस खत्म करने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाके पूरा कोर्स किया, पूरा टेक्निकल समझे, मार्केट का स्ट्रक्चर। आज भी मैं मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी करता हूँ। आई लाइक टू, मतलब मार्केट अमेजेस मी ऑल द टाइम कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पास के पैटर्न्स, जो रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, वो मुझे बहुत अपील करते हैं, एंड आई ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल अराउंड दैट। तो वहाँ पर मैंने एक बिजनेस खड़ा किया, प्रोप्राइटरी डेस्क। आई वॉज पार्ट ऑफ द इंसेंटिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दैट बिजनेस। तो एक अपना सैलरी भी चल रहा है। तो ये इन अ वे इट वॉज ऑल्सो रिस्क फ्री, कि भाई
कोई और आपके लिए काम कर रहा है, कोई और पैसा बना रहा है, कोई और रिस्क ले रहा है आपके लिए, और उसका जो बॉटम लाइन है उसका आपको कुछ ना कुछ एज अ मैनेजर बोलो या टीम लीडर बोलो, आपको इंसेंटिव मिल रहा है। तो क्योंकि देखो घर लेना भी बाकी था, शादी भी बाकी था, वो सब हर एक चीज में पैसा लगता है, तो आपके पास इतना डिस्पोजेबल सरप्लस बचता ही नहीं है। एक मिडिल क्लास का तकलीफ ही ये है कि भाई जब तक उसका बॉम्बे में घर लेना मतलब इट्स इम्पॉसिबल टास्क। तो वहां पर आपको घर भी लेना है, शादी भी करना है, बच्चा भी है, आपको उसको पढ़ाना भी है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते, ब्लाइंड रिस्क नहीं ले सकते, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। यू मस्ट इंश्योर कि आपका जो कैश फ्लो है वो मेंटेन है, और जो पैसा बचता है उससे आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। तो साइड हसल ट्रेडिंग वगैरह चालू था, इन्वेस्टमेंट भी चालू था, लेकिन मेजरली आई वाज फोकसिंग ऑन समथिंग विच गिव्स मी रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री नहीं है लेकिन कम रिस्क में अपना, तो अपने पास एज अ अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है लेकिन आपके पास टाइम तो काफ़ी है, आपके पास मैनेजमेंट स्किल है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, आपके पास नॉलेज है, ये सारी लिवरेज है जो आप लिवरेज को आप डिप्लॉय करके, देर आर वे मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग मनी। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेड डाल के ही पैसा बनाया जा सकता है, देर आर मल्टीपल, यू कैन बिल्ड अ बिजनेस ऑल्सो वेल, जो करंटली हम लोग कर रहे हैं एट कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स। तो देर आर मल्टीपल वे, खाली डायरेक्ट ट्रेडिंग करना ही जरूरी नहीं है। ट्रेड में करता भी हूँ, डिस्क्रिशनरी भी करता हूँ, सिस्टमैटिक भी करता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ, और साथ में बिजनेस भी बिल्ड कर रहा हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें करने से क्या होता है, कोई एक चीज़ नहीं चलती है, आपका एक साल खराब गया, दूसरा साल खराब गया, तो अगर आपका कोई कैश फ्लो दूसरी जगह से आ रहा है तो यू विल बी एबल टू सर्वाइव। तो ये स्ट्रैटेजी मेरा हमेशा मल्टीपल चीज़ करना रहा, और थोड़ा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी है। I like how you're being very open about this because बहुत लोग ना they take that pride in being a trader first. यस, But आप बोलते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं यार, जरूरी नहीं मार्केट से पैसे बनाएंगे, बट मेरे बेट से नहीं, बट दूसरी तरीके से पैसे बनाए। पसंद बनाए। या It's सो आई डिड दैट फॉर अ क्वाइट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक्टिवली ट्रेडिंग मैंने 2006 में चालू किया, वो भी यू कैन से आई एम एन एक्सीडेंटल ट्रेडर। अभी डेस्क सेटअप हो गया, अब ट्रेडर लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम कल रिस्क मैनेज कर रहे हैं, तो दिन भर कुछ काम तो है नहीं। सो एक फ्री टाइम था तो मैंने चलो अभी ये बच्चे लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं भी तो करके देखूँ कि हो क्या रहा है ये। सो फिर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मैंने चालू किया, मतलब आप स्क्रीन देख के डिसाइड कर रहे हो कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, ये ओवरनाइट कल ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। नहीं राकेश जी, इससे पहले मेरे को एक डाउट है। हाँ, यू हैड अ टीम ऑफ ट्रेडर्स, या वहाँ पे कोई ना कोई स्टार ट्रेडर रहेगा, बिल्कुल उसका परफॉर्मेंस आपको पता है। बिल्कुल। कभी ऐसे लगा कि मेरे पैसे इस पे लगाऊंगा, ये मेरे लिए ट्रेड करेगा? नहीं, बिकॉज सी कलेक्टिवली आई वाज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पूल। हाँ आई नो, बट आपका जो भी मिलता था आपको इंसेंटिव भी मिलता था, I know, आपका पैसा तो ग्रो नहीं हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बट कभी ऐसे लगा कि ये स्टार ट्रेडर है, मतलब कंसिस्टेंसी पैसे बना रहा है, मेरा पैसे इसको तो दूंगा, चलो थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग में करेंगे। सो एक सी मेरा वर्क एथिक थोड़ा डिफरेंट है एंड आई अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफ यू आर हेडिंग अ डेस्क एंड यू आर आस्किंग अ स्टार ट्रेडर मेरा भी थोड़ा 10% रख ले, तो दैट इज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सो एक्सपेक्टिंग। वर्क एथिक के अगेंस्ट में है, तो आई नेवर वांटेड टू डू दैट। एंड somebody is trusting you with crores of rupees to manage and you are doing side hustle with somebody, and वो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो Played मैंने the bouncer सो इसके लिए मैंने नहीं किया। एंड आई न्यू कि स्टार प्लेयर कौन है, उसको मैं बोलता तो आई वॉज द इंचार्ज, अगर मैं आपको बोलूँगा यार 10% मेरा भी रख ले, तो दैट वॉज क्वाइट पॉसिबल, बट आई हैव नेवर डन दैट। एंड बीइंग अ ब्रोकर, काफ़ी ब्रोकर देखो प्रॉप ट्रेडर को एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते, ये लगा देते, लेकिन हमारे वहाँ पर हम लोग ने कभी भी एक भी रुपया कभी भी किसी को एक्स्ट्रा नहीं लगाया। जो एक्सचेंज से लगता है वही कैलकुलेशन पूरा करना पड़ता है, भाई आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्या किया, इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ब्रोकर, काफ़ी ब्रोकर के उधर प्रैक्टिस होता है, उसको भी पैड अप करते हैं, लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एंड कर्मा कैचेस अप, अगर आप कुछ गलत करते हो आपको तो पता ही है, सामने वाले को पता है कि नहीं है, तो आई ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑलवेज। एंड कोशिश यही है कि वर्क एथिक अपना क्लियर रखें। नाइस। तो जब ट्रेडिंग शुरू किए थे, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स वर यू टेकिंग? सो ट्रेडिंग जैसे BTST ट्रेड्स थे कि भाई आज डिस्क्रिशनरी, एब्सोल्युटली डिस्क्रिशनरी। 2006 से डिस्क्रिशनरी चालू किया। तो जैसे बाकी ट्रेडरों का अकाउंट होता है, मेरा भी एक अकाउंट था कि मैं भी वहाँ ट्रेड करता हूँ। मैं भी आई स्टार्टेड बीइंग अ ट्रेडर देयर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीम लीडर। तो वहाँ पर BTST चालू किया, आज ले रहे हो कल सुबह बेच रहे हो, आज ले रहे हो कल सुबह बेच रहे हो। तो वो भी काफ़ी साल, 2 साल, 2.5 साल चला। फिर 2008 का क्रैश अच्छा पैसा बना? पैसा अच्छा बना।
अनुभव ज़्यादा मिला पैसे से, और क्योंकि आई हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग अ डेस्क, तो टाइम भी कम मिलता है, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। मैं हर बार ट्रेड इसके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मार्केट को समझना चाहता हूँ कि ये सेगमेंट ऑफ मार्केट लोग कैसे पैसा बना रहे हैं, और वहाँ से मैं कुछ मॉडल बना सकता हूँ, या मैं कुछ प्रोडक्ट बना सकता हूँ, या उसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैकेनिकल बन जाए, सिस्टम बन जाए, कि मेरा डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर चला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, राइट। और ट्रेडर्स का भी साइकिल बहुत हेवायर होता है, तो कभी स्टार होते हैं तो कभी एकदम बॉटम में चले जाते हैं, पैसा बनता है, पैसा टूट भी जाता है, सो यू डोंट हैव दैट स्टेडी कैश फ्लो। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू हैव अ कैश फ्लो, कि भाई आपको कैपिटल इन्वेस्टेड है, रेगुलर आपका खर्चा भी चालू है, ये है वो है, तो सबको, तो रेगुलर कैश फ्लो के लिए कुछ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको रेगुलर इनकम हो। तो दैट इज़ वेयर द आइडिया ऑफ सिस्टम ट्रेडिंग केम, कि भाई रादर देन डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर्स डिस्क्रिशन, वी शुड टेक मैटर्स इन आवर हैंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ 2012 में ये मुझे सिस्टम ट्रेडिंग का भी विचार आया, और वहाँ से लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स चालू किए। वहाँ पे यूएस में जो हेज फंड्स करते थे, वो सबका आपको इन्फॉर्मेशन मिलता था? इन्फॉर्मेशन देखो, दैट वाज द टाइम व्हेन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिनाइजेंस टेक्नोलॉजीज वो सब उसी टाइम पे हाँ, तो सी मेरा फर्स्ट इंस्पिरेशन ऑलवेज ट्रेंड फॉलोइंग था। एड सिकोटा को मैंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा उसके बारे में समझा। ट्रेंड फॉलोइंग इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। 2016 में मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ा बाय रे डालियो, जहाँ से पूरा ये नॉन कोरिलेटेड सिस्टम्स का फ्रेमवर्क मुझे पता चला कि ऐसा नॉन कोरिलेटेड सिस्टम साथ में करने से ड्रॉडाउन कम होता है और रिटर्न बढ़ता है। तो हमेशा देखो, नॉलेज का क्वेस्ट मेरे माइंड में रहता ही है। तो मेरा रीडिंग, आज भी मेरे घर में 1000+ बुक्स पड़े हुए, सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड। सो मेरा रीडिंग चालू रहता है, जहाँ जो बुक में मुझे इंटरेस्ट लगता है वहाँ मैं डीप में जाता हूँ। आज भी SSRN पे काफ़ी रिसर्च पेपर आते हैं, मैं वो रिसर्च पेपर आज भी पढ़ता हूँ, कुछ भी इंटरेस्टिंग आए तो पढ़ता हूँ। तो रेनेसेंस के बारे में पढ़ा मैंने, रे डालियो के बारे में पढ़ा। तो मुझे ऐसा इंक्विजिटिवनेस आता है कि ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा अभी वही पाथ पे चल रहे हैं हम लोग। काफ़ी मॉडल्स हम लोग ने डेवलप भी किए, और लॉन्ग ओनली का भी हमने मैकेनिकल सिस्टम बना दिया, इन्वेस्टमेंट का भी सिस्टम बना दिया, कि मतलब एक आम आदमी भी कर पाए। तो जो मुझे डिफ़िकल्टी आ रही थी वो शायद एक सामने वाले को नहीं आए, वो एंगल से मैं प्रोडक्टाइज कर रहा हूँ एक एक चीज़। अब तो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग तो चलता ही चलता है, लेकिन मेजर एस्पेक्ट ये है कि हाउ टू प्रोडक्टाइज व्हाट यू आर डूइंग। Now, once you started building these systems, how long did it take for you to fine tune it? So fine tune, it's a continuous process, it's not a one time process. So I prefer कि भाई ऐसा नहीं है कि जब भी मैं परफेक्ट सिस्टम बन जाएगा तभी चालू करूँगा। मैं 19-20 सिस्टम से भी चालू कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करता हूँ। जब भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तभी उस पर पैसा कम लगाते हैं, ऐसा लगे कि स्टेबल हो गया ऐसे। When did this start exactly? 2012 में। 2012 में। That is when like the APIs just हाँ, जस्ट आया था, तो तभी ऑटोमेटेड भी नहीं करते थे हम। जो डिसीजन मेकिंग था वो ऑटोमेटेड था, एग्जीक्यूशन मैनुअल था। सो जैसे आपने कोड लिख दिया, वहाँ सिग्नल वहाँ से आ रहा है कि आपको क्या करना है, लेकिन वो सिग्नल डीलर देख के एग्जीक्यूट कर रहा था। तो लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स, हाई बीटा स्टॉक्स पे मैंने तभी चालू किया, और आई फाउंड के मार्केट में 3 फेज है, या तो बुल है, या तो बेयर है, या तो साइडवेज है। अगर आप खाली इन्वेस्ट कर रहे हो तो जस्ट प्लेइंग वन साइड ऑफ द मार्केट विच इज़ बुल मार्केट। एंड बुल मार्केट 10 साल में 3 साल आता है, 7 साल या तो बेयर रहता है, या तो साइडवेज रहता है, या तो वोलेटाइल विद इन द रेंज रहता है। तो बाकी के 7 साल क्या करोगे आप? पैसा तो बनाना है, ऑल वेदर पैसा बनाना है, हर साल बनाना है। तो वाई नॉट प्ले द अदर साइड ऑफ द मार्केट विच इज़ अ बेयर मार्केट। सो से अगर 3-4 साल बुल मार्केट रहता है तो 1-2 साल बेयर मार्केट भी रहता है, एंड 3-4 साल साइडवेज मार्केट भी रहता है। तो अगर साइडवेज में आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजीज करो, और बुल और बेयर में आप लॉन्ग शॉर्ट करिए, ट्रेंड फॉलोइंग करिए, सब साथ में करिए, तो आपका एक कैश फ्लो स्टेबल हो सकता है, या हर साल आपको रिटर्न आ सकता है। सो ये थॉट प्रोसेस से मैंने एक एक मॉडल बनाना चालू किया। अभी भी मॉडल्स बन ही रहे, और अभी भी रिसर्च चालू है। एंड 2012 से मेरा जर्नी सिस्टमेटिक बना रहे थे तब आप were you like an independent trader or you No, were I was for working for a broker till December 2017, and I had the discretion of deploying the funds. So I was allocator of funds to traders. client funds को? नहीं, promoters fund. Promoter funds. So own fund, proprietary fund था। Client का तो फंड पैसा हम लोग एक फैमिली ऑफिस टाइप था क्या? फैमिली ऑफिस था, एब्सोल्युटली फैमिली ऑफिस था। प्राइमरी दे वर इनटू डेवलपर्स एंड ऑल दैट, बट दिस वाज अ साइड हसल फॉर देम। एंड वहाँ पर मैंने ये मॉडल्स ट्राई भी किए, टेस्ट भी किया प्रॉफिटेबली। ऑफ कोर्स कभी नुकसान भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन एक भी साल नेगेटिव नहीं गया। काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, और फिर मुझे लगा कि अभी दिस इज़ द टाइम आई शुड गो इंडिपेंडेंट।
and explore myself, give myself sufficient chance to build And a to get out of that conflict of interest. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी, हाँ, उससे भी बाहर निकले. और क्योंकि सिंस इट्स अ प्रोप्राइटरी डेस्क, यू कैन नॉट रीच आउट टू पीपल फॉर मैनेजिंग फंड्स एंड ऑल दैट. यू आर जस्ट लिमिटेड टू मैनेजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन फंड. प्लस आपका नेटवर्क भी नहीं बन रहा है, आप आउटसाइड भी नहीं जा रहे हो, किसी से मिल भी नहीं रहे हो. तो एक एट द एज ऑफ 46 मुझे लगा कि आई शुड बी फुल टाइम एंटरप्रेन्योर रादर देन जस्ट वर्किंग फॉर समबडी. सो जनवरी 2018 में मैंने ये अपना कंपनी फॉर्म किया, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स. और वहाँ से अभी देखो 7 साल. This aspect is something like what I'm trying to I'm finding it very lucrative here. Yeah. And it's a fresh concept because बहुत सारे traders क्या करते हैं ना, they just talk about ROA maxing. भाई मेरा 30% रिटर्न आ रहा है, उसको मैं 60 कैसे करूँ. बराबर. तो मैं बोलता हूँ भाई तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है, बेस कैपिटल बढ़ाने का सोचो ना. बराबर, बिल्कुल. गेट योर इनकम फ्रॉम सम अदर, पाई बड़ा कर लो. हाँ, बिकॉज रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क. आप जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न बनेगा. And market is not obliged to give you return. मतलब it's not your birthright to A get lot of people are caught up in return maxing. Yes. And they're not caught up in, diversification and bringing in more chunk of the capital so that the same percentage of return would give them more absolute return. Absolutely. But what you did was like you started building businesses and you never went to return max. Right. So which is something I like. So ultimately, see, life में पैसा लिवरेज से ही बनता है. मैं आपको ये बता देता हूँ. लिवरेज डिफरेंट फॉर्म में होता है. लोगों का अंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई लोन लिया उसको लिवरेज बोलते हैं. ऐसा नहीं है. लिवरेज डिफरेंट फॉर्म में होता है. एंड इफ पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल शुड रीड नवल रविकांत. ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट लिवरेजेस, राइट. जैसे आप हो और आपके नीचे 100 जन काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो लेबर लिवरेज है. अगर आपका 100 रुपये आपने बैंक से 500 रुपये ले लिया तो वो कैपिटल लिवरेज है. हम लोग वहीं पे अंदर बात कर रहे थे ना. बिल्कुल, जी हाँ. तो इंडिया में ऐसा है कि जब हम लेवरेज और रिस्क की बात करते हैं, दे थिंक यूनिडायरेक्शनली, सिर्फ पैसे के रिलेटेड ही बात करते हैं. तो रिस्क कैन बी मेनी थिंग्स. एब्सोल्युटली. अपॉर्चुनिटी रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है, टाइम रिस्क है. बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड लेवरेज आल्सो कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, डेफिनेटली. including our regulators. Like they have a very unidirectional and या डेफिनेटली. तो मतलब रिस्क कैन कम इन एनी फॉर्म. सडनली रेगुलेशन चेंज हो गया. अभी सडनली ट्रम्प ने टैरिफ डाल दिया तो आपका बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस सडनली लॉस मेकिंग हो सकता है. absolutely. आपको फैक्ट्री शिफ्ट करना पड़ सकता है, आपको लेबर चेंज करना पड़ सकता है, काफ़ी कुछ मूविंग पार्ट्स है. तो रिस्क कम फ्रॉम द सोर्सेज विच आर नॉट नोन टू यू इन एडवांस. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रिस्क ऑफ रूइन हमेशा ध्यान में रखें. कुछ भी हो जाए, रिस्क ऑफ रूइन नहीं होना चाहिए. I am a proponent of using leverage, but with risk management, with hedges. क्योंकि रेनेसेंस का जो मैं आपको स्टोरी बताऊं कि अगर वो अनलिवर्ड होते तो खाली 4% बनता. Correct. Which is below S&P. Since they were leveraged 12.5 times, तो उनका 66% बना. हाँ, प्री फीस एंड प्री टैक्सेस. ओके. So what determines the returns? Return is not determined by the strategy. Strategy से return determine नहीं होता है. Determine होता है access to the leverage. How much access to the leverage you have and how you maximize those access to the leverage. So return is a function of leverage, and I always talk about other 3 pillars. Like there are 4 pillars. One pillar is leverage, जिससे आपका return बढ़ता है. Other 3 pillars I always talk about is non-correlation, diversification and hedging. These are the 3 pillars through which you control risk. मतलब अब अगर लक को आप पिलर नहीं मानते? luck has its own role. So luck, see, वो कंट्रोलेबल नहीं है. मुझे पता नहीं है पहला मेरा लक सही है गलत है, मुझे नहीं पता है. हाँ, वो तो है. That is kind of I strongly believe there is a role of luck in success, but that doesn't stop me from doing hard work. Absolutely. ओके. ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठ जाऊँ कि मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा. ऐसा नहीं है. सो आई बिलीव इन हार्ड वर्क बिकॉज आई डोंट नो मेरा लक क्या है. अगर आप मुझे एडवांस में बोल दोगे हार्ड वर्क पुट्स यू इन अ प्लेस वेयर लक कैन फाइंड यू इजीली. सो द हार्डर यू वर्क luckier you get. That is what I believe. And कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है. अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, पैसा बना के नहीं बना सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो. एंड दैट कीप्स यू live and kicking, and that keeps you alive, that gives you the reason to get up from the bed the next day morning कि आपको उठ के कुछ करना है, you know. So let's talk about trading a bit. Like Yes. जो अभी current systems जो चल रहा है. जी हाँ.
तो हाउ डिड यू रीच दिस पॉइंट? मतलब एक सिस्टम्स बनाए साइमल्टेनियसली, नॉन कोरिलेटेड सिस्टम्स मेरे को 4 बनाना है, मेरे को ऑल सीजन प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो मेरा एक लॉन्ग ओनली सिस्टम है, एक लॉन्ग शॉर्ट सिस्टम है, एक ऑप्शन बीआरपी सिस्टम है और एक समझ सो ये बिट बाय बिट बनाया, क्योंकि देखो रिसर्च में काफ़ी पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी आर नॉट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बूटस्ट्रैप्ड है। एंड जॉब करने के बाद जो भी रिटायरमेंट का सेविंग होता है उससे कंपनी बना रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। सो ब्लाइंड रिस्क भी नहीं ले सकते। मतलब एक जो टेकी एंटरप्रेन्योर होता है वो गलती कहाँ कर लेता है, दे गो फॉर मेकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड एंड वो कमर्शियल पे ध्यान नहीं देते। तो प्रोडक्ट तो बेस्ट बन जाता है लेकिन वो बंदा बैंकरप्ट हो जाता है क्योंकि उसने इतना स्पेंड कर दिया कि अभी ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट डाइट ऐसा हो जाए। तो वो मेरा दिमाग में वही हमेशा ध्यान में रहता है कि भाई रिसर्च करना है लेकिन अनलिमिटेड कैश बर्न भी नहीं करना है, अनलिमिटेड टाइम बर्न भी नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज से धीरे धीरे करके हम एक मॉडल बिल्ड करते हैं और वी पुट इट इनटू प्रैक्टिस। एंड आई कैन से विथ लॉट ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट वी हैव बिल्ड वन ऑफ द मतलब not one of the many such models which are not commonly used in Indian arena right now. And we are in the process of productizing one after another. We have productized as a small case 2 years back, and we are going to productize long shot models in category 3 AI very soon. स्मॉल केस से हम PMS भी करने जा रहे हैं आगे जाके। तो ये काफ़ी कुछ मॉडल जो मैंने बनाए, जिसको लाइव ट्रेड भी किए, बैक टेस्ट भी किए, इन सैम्पल आउट सैम्पल लाइव मार्केट में भी टेस्ट हो रहे हैं अभी भी। तो उसमें से जो जैसे आपने 100 चीज़ ट्राई किया तो 10 15 20 चीज़ आपको लगेगा नहीं ये 80 चीज़ को डिस्कार्ड करने जैसा है, ये 20 चीज़ को रखने जैसा है। बट व्हाट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल दोज मॉडल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑल योर मॉडल्स शुड हैव सफिशिएंट एज फर्स्ट ऑफ ऑल। ना ट्रेंड फॉलोइंग है most of them? I am a trend follower by heart, but I don't insist on labeling myself as a trend follower. I insist myself as somebody who is using multiple non-correlated strategies. So the core principle that I am running right now is non-correlated multiple strategies. Directional ho, non-directional ho, long short future ho, equity ho, and everything should be rule based. Nothing is at your discretion. Everything is predefined. Can be verified, can be done by even a small child. Now let's say एक आपका लॉन्ग सिस्टम है वो इक्विटी में रन होता है, बिल्कुल, एंड नॉन डायरेक्शनल सिस्टम है जो ऑप्शन में रन होता है, बिल्कुल। हो सकता है कि आपका इक्विटी में ही एक 3-4 अलग सिस्टम्स होंगे, बिल्कुल। तो ऑल दोज 3 सिस्टम्स और 3-4 सिस्टम्स आर आल्सो नॉन कोरिलेटेड? जी हाँ, देखो अगर आप खाली लॉन्ग ओनली कर रहे हो ना तो नॉन कोरिलेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, पूरा नॉन कोरिलेशन नहीं हो सकता है। If you diversify across say 100 stocks or if you diversify across 1000 stocks, beyond the point आपका risk reduce नहीं होगा, because all stocks are correlated with each other. 0.67 का correlation है हर एक stocks का। तो आप थोड़ा बहुत 4-5 मॉडल यूज कर लो, फिर 5 मॉडल यूज करोगे, 50 मॉडल यूज करो, रिस्क उतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई होता है, तो 4-5-6 मॉडल बनाना सेंस है, इसके बियॉन्ड कोई सेंस नहीं। सो बेसिकली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपोजर होना चाहिए। सो डाइवर्सिफिकेशन और नॉन कोरिलेशन कैसे कर सकते हो आप? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट जैसे वेज ऑफ स्ट्रैटेजीज, जैसे इंट्राडे हो गया, ओवरनाइट हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इंट्राडे कर लिया, ओवरनाइट कर लिया, डायरेक्शनल कर लिया, नॉन डायरेक्शनल कर लिया। डिफरेंट टाइम फ्रेम से टाइम फ्रेम भी कर नॉन कोरिलेशन मिलता है, बिल्कुल। आप अगर डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो और डायरेक्शनल में मिलता है, शायद डायरेक्शनल में मिलता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, 25 मिनट, तो कहीं ना कहीं जैसे अभी 75 मिनट समझो लॉन्ग है और मार्केट में डाउन मूव आया है, तो सबसे पहला 3 मिनट वाला शॉर्ट हो जाता है, तो आपको हेज मिलना चालू हो जाता है। आप जितना नॉन कोरिलेशन बिल्ड करते जाओगे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज स्टेपर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न कम्स and certainty of return comes. What's the sweet spot for you? Sweet spot still I'm not जैसे एक नॉन कोरिलेशन का एक किताब में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है अपना, मैन हू सोल्ड द मार्केट में, उसमें ऐसा बोला है कि अगर एक एसेट है विच सपोज ड्रॉस डाउन 19% एग्जाम्पल, एंड इफ यू यूज 100 assets, so what is an asset? For asset is kind of something which generates return. So for a strategy can be asset also, okay? एक strategy है, उसका daily returns. If you have 100 non-correlated system, then that drawdown goes to 2%, okay? And if you have 10,000 such systems, that drawdown goes to 0.2%. तो virtually आपका 365 दिन profitable हो सकता है अगर आपके पास 10,000 ऐसे तरीके हैं जिससे आप पैसा बना रहे हो, and if you are diversified enough and they are non-correlated.
Now we looked at the risk part of it. What about the return? रिटर्न Return कैसे टेपर होंगे? रिटर्न यूज ऑफ लिवरेज से होंगे. अच्छा. हाँ. So you control your risk and you lever to the max. एब्सोल्युटली लीवर टू द मैक्स बट कंट्रोलिंग रिस्क. सो कंट्रोलिंग रिस्क का 3 एस्पेक्ट मैंने बताया. कैसे रिस्क करो, एक डाइवर्सिफिकेशन करोगे, मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी इंस्ट्रूमेंट, मल्टी मार्केट्स, ये हो गया. देन यू हैव नॉन कोरिलेशन. आप डेली रिटर्न सबका निकालो, हर एक स्ट्रैटेजी का. नॉन कोरिलेशन फंक्शन से देखो कितना कोरिलेटेड है. जितना कम कोरिलेटेड है उतना एक दूसरे का ड्रॉ डाउन काटेगा वो. थर्ड इज हेज, मतलब रिस्क ऑफ रूइन अवॉइड करो. आपका वार मेंटेन करो कि भाई वैल्यू एट रिस्क कितना है. अगर ओवरनाइट कुछ भी हो जाता है तो आप कितना पैसा खो सकते हो. तो ये 3 चीज से प्राइमरीली रिस्क कंट्रोल हो जाता है. वंस यू रिस्क अंडर कंट्रोल यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक लिवरेज, एंड हायर द लिवरेज हायर द रिटर्न. तो आप हो सकता है कि like if I'm not wrong, you have one long model in equity and then one long short model in probably stock option. So there are multiple models in long short, multiple models in equity, and multiple models in options also. हाँ, yes. तो then 3 एक baskets option- you can say. There are 3 baskets. commodities में भी है exposure. Commodity में भी सेम चीज कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड वी आर गोइंग बिट बाय बिट एंड धीरे धीरे कर रहे हैं. कमोडिटी में भी सिमिलर कंसेप्ट यूज किए जा सकते हैं, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर हो रहा है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली कमोडिटी भी एक्सप्लोर करना चाहिए. And then currency hedging करते हैं? करेंसी हेजिंग नहीं करते हम. नहीं करते. बिल्कुल नहीं. Geographical hedging भी नहीं करते. बिल्कुल नहीं करते हैं. एब्सोल्युटली. तो जो भी होगा like Indian equities. सो दैट Indian कैन बी space अवर में जो- फ्यूचर पाथ ऑफ एक्शन, कि जहां हम शायद गिफ्ट सिटी में कुछ सेटल करके इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड करें. तो ये फ्यूचर पाथवे है, अभी नहीं कर रहे. बैक ऑफ द माइंड में सब है, और कोशिश यही है कि कुछ अच्छा प्रोड्यूस करे इंडिया से, कोई अच्छा इंडिया से हेज फंड अच्छा निकले, और वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट. तो कोई मतलब ओवरसीज फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं. दूसरा मार्केट में भी बिल्कुल market को भी एब्सोल्युटली trade कुछ करनी नहीं, कुछ नहीं. एब्सोल्युटली. है। क्रिप्टो में वेंचर किए? क्रिप्टो, आई एम नॉट अ बिलीवर इन क्रिप्टो, एंड ना फंडामेंटली तो छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग के लिए क्या प्रॉब्लम है? If प्रॉब्लम something ये है ticks- कि if देखो something ticks to मैं trading- यहाँ पर भी मेरे को एथिकल इश्यू आता है. जब ये कोई, अगर मेरा फंडामेंटल बिलीफ है कि ये पॉन्जी स्कीम है, मुझे ऐसा लगता है, इट मे नॉट बी, पीपल माइट नॉट थिंक, यू No, that's what I'm trying to say. Like, सो मतलब यू नीड टू फाइंड अ ग्रेटर फूल, ठीक है, हु इज बिलीविंग इन क्रिप्टो, जिसको आप बेचोगे. ठीक है. अभी मुझे तो नहीं लगता है कि क्रिप्टो कोई असेट है, लेकिन लोगों को लगता है तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है. क्रिप्टो का स्टोरी मेरे पास $600 था ना, बिटकॉइन तब से है मेरे पास, लेकिन मैंने आज तक एक भी ट्रेड नहीं किया है, ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा चीज़ है. ये गोल्ड नहीं है. लोग भले बोले गोल्ड है. even I'm with you on this. I'm from the same school of thought. The crypto में risks बहुत ज़्यादा है, and probably it's out of my comprehension. Absolutely. But I believe that as a trader, we have to trade everything that moves. हाँ वो है. अगर आप ये बिलीव कर रहे हो, देखो ट्रेडर को इंस्ट्रूमेंट को उससे मतलब ही नहीं है. हाँ. प्राइस मूव होना चाहिए, वॉल्यूम होना Price चाहिए, move एंट्री एग्जिट volume होना चाहिए. बस. लेकिन यहाँ मुझे एथिकल डिलेमा है, इसके लिए मैं नहीं करता हूँ. क्योंकि जिस दिन भी ये बबल, अगर ये बबल है और फूटा, उस दिन करोड़ों लोग पैसा खोएंगे इसमें. तो मुझे नहीं लगता है आई शुड बी पार्ट ऑफ The दैट. problem with it's not sovereign backed. Exchanges ही बंद पड़ सकता है. मतलब कुछ भी हो, Counterparty risk है. काउंटरपार्टी रिस्क है. और मतलब एक मैथमेटिकल पजल से कुछ बन गया, उसको आपने वैल्यू अस्क्राइब कर दिया. आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सडनली कैसे क्रिप्टो में देखो चेंज आ सकता है. इतने सालों से डायमंड प्रेशियस था, सडनली लैब ग्रोथ डायमंड आ गया. Correct. तो डायमंड का वैल्यू खत्म हो गया. तो जो हिसाब से एआई आगे बढ़ रहा है, ये मैथमेटिकल पोजीशन जो पजल है वो सॉल्व हो, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट से बढ़ जाएगा वो सॉल्यूशन. तो सप्लाई बढ़ जाएगा अपने आप, तो ऑटोमेटिक क्रैश, मतलब कुछ भी हो सकता है. जो इतना इनोवेशन हो रहा है, तो क्रिप्टो आई स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड आई रिकमेंड पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम, बट टू ईच इज ओन. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट इट, एंड मुझे नहीं लगता है करना चाहिए. तो एक छोटा सा, मतलब अभी तो सब लोग स्टोरी सुन लिए, तो थोड़ा टेक्निकल में जाएंगे. एब्सोल्युटली. So I believe that a trading system should be as simple so that even a 6-year-old can understand. यस. तो आपका एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे बताना चाहिए कि मतलब उस आइडिया को लेके कोई भी आके उसके बेसिस पे उनका ओन वर्जन बना सकते हैं. लेट्स टेक इक्विटी. ओके. ठीक है. लेट्स से देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ 100 स्टॉक्स. 100 ही स्टॉक्स है हमारे पास. उस 100 स्टॉक्स में हमारा 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है. एंड रीबैलेंस करना है, लाइक वॉट एवर टाइम फ्रेम की वजह से. तो हाउ डू यू पिक दो स्टॉक्स? ओके. क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे एग्जिट है? बिल्कुल.
मैंने इन्वेस्टमेंट सिस्टम 2016 में जो बनाया पहला सिस्टम, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय निक राज करके एक इंटरनेशनल ट्रेडर है जो इंटरनेशनल मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो ही हैड डेवलप्ड सिस्टम बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड. ओके, इन्वेस्टमेंट सिस्टम था. बैक देन इन 2016 he was generating 21% since last 30 years. Last 30 years. Last 30 years. Unlevered. That is what he claimed. I have not verified the claim. So that kind of intrigued me. If there is something which is mechanical, completely rule driven, and replicatable by anybody and everybody. Okay. So वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैंने एक बॉलिंजर बैंड के बेस पे एक सिस्टम बनाया जो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, ग्रो के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया है अर्लियर पॉडकास्ट में. एंड आई कॉल इट दैट सिस्टम, आई कॉल इट CW2 सिग्मा. एब्सोल्युटली फ्री है. उसका इंडिकेटर बना के ट्रेडिंग व्यू में भी डाल दिया. अभी आपने जो बोला उसके अराउंड में सिस्टम बना के सबको बोल देता हूँ कि कैसा सिस्टम बनता है. ओके, मतलब हम बनाएंगे यहाँ पे बैठ के. यहाँ बिल्कुल लाइव सिस्टम आपके सामने बनाएंगे. अभी. तो अगर यू कैन एक्चुअली टेक एन ऑडियंस इनटू दिस आल्सो. अगर कोई इन्वेस्टर है उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं. विल टेक द क्वेश्चंस लेटर. ओके, बट अभी फिलहाल मेरे तरफ से क्वेश्चन है. ठीक है. हाँ चलो, तो आप इन्वेस्टर हो, मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको. आपको इन्वेस्ट करना है, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? तो डिपेंड्स ऑन माय साइकी. Okay. Am I a buy on dip kind of investor? I mean value investor हो या I'm a momentum investor. ठीक है. तो आपका सिस्टम जनरली आई बिलीव मोमेंटम बेस्ड. मोमेंटम साइड ज़्यादा है, प्राइस एक्शन बेस्ड ज़्यादा है. ओके. लेकिन एज एन इन्वेस्टर लोगों के माइंड में क्या आता है, मैं आपको क्वेश्चन, मतलब लोगों को डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में पैसा बहुत है लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है. सबसे पहला तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6000 स्टॉक्स लिस्टेड है. तो पहला क्वेश्चन ये आता है लोगों के माइंड में कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं. 6000 स्टॉक है यार. तो सबसे पहले आप अपना यूनिवर्स डिफाइन कर लो. जो आपने किया कि मेरा समझो यूनिवर्स ऑफ 100 स्टॉक है. ठीक है, तो आई विल इन्वेस्ट ओनली आउट ऑफ दिस 100 स्टॉक. से फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, टॉप 100 स्टॉक. सेकंड क्वेश्चन आएगा कि मैं कभी इन्वेस्ट करूं. तेजी मंदी पता नहीं है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे. तो उसके अराउंड एक रूल बना दिया कि भाई आप इन्वेस्ट तभी करेंगे जब भी वीकली क्लोजिंग अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा. ओके, सो बॉलिंजर बैंड का 3 एस्पेक्ट है. एक मिडिल विच इज मूविंग एवरेज, लोअर एंड अपर रेंज, लोअर बैंड एंड अपर बैंड. सिंस वी आर फॉलोइंग ट्रेंड एंड मोमेंटम, वी विल इन्वेस्ट ओनली व्हेन द प्राइस गोज अप एंड गोज बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज अपर बॉलिंजर बैंड. सो नाउ व्हाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन? देखो, आपको 5 ही स्टॉक्स में डालना है. तो आपको 5 एक्सेप्शनल स्टॉक चाहिए विच आर मूविंग एक्सेप्शनली गुड. आपको 95 जो एवरेज मूव कर रहा है वो नहीं चाहिए. दैट इज वाई स्टॉक्स विच आर मूविंग बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ तो भी इसमें न्यूज़ है या फंडामेंटल डेवलपमेंट है. दैट इज वाई, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा मूव नहीं होता है अगेन ऑन अ वीकली बेसिस. ठीक है, तो हम लोग ने इसको ऑप्टिमाइज किया है इस सिस्टम को कि जो बॉलिंजर बैंड का सेटिंग होता है वो 20 मूविंग एवरेज का होता है. बाई 20 वो स्टैंडर्ड सेटिंग है जो बॉलिंजर ने बनाया. अगर कोई बंदा 20 को निकाल के 25 डालेगा तो मैंने 50 ही किया है वो. हाँ, तो मैंने उसको निकाल के 50 किया. 50 क्यों किया? क्योंकि हम लोग ने पूरा डेटा को ऑप्टिमाइज किया कि मैं 20 फॉलो करूँ, 30 फॉलो करूँ, 25 फॉलो करूँ. तो वी फाउंड कि 50 फॉलो करना ठीक है. Isn't it curve fitting? To some extent, yes, it is a curve fitting till the time you are fitting the curve. But when you are using it live, then it is not curve fitting because you are using the same principle for next 10 years, next 15 years, next 20 years. But we are not sure of the future returns, right? But अभी जो हमने live deployment कर रहे हैं, it can change, okay? It can change. But अगर if you are following some fundamental principles, like trend following is a fundamental principle, momentum is a fundamental principle. Trend following, मतलब stock will trend either upwards or downward eventually. In the interim, they can go up and down and they can go sideways, but eventually they will trend. So this phenomena is not going to change. So when you're using such factors,
which are existing since the last 200, 300 years, generally they don't deviate much. They No, deviate. I'm not refuting the fundamental principle of it. Yes. I'm just saying अगर बंदा 20 बॉलीजर बैंड के सेटिंग को 20 के जगह 25 करेंगे तो कितना डिफरेंस आ सकता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. इसमें दोनों में डिफरेंस आता है, रिटर्न में भी डिफरेंस आता है और ड्रॉडाउन में भी डिफरेंस आता है. मेरा ऐसा मानना है हर एक स्टॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक है, या हर एक इंडेक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, या हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके हिसाब से सेटिंग होना चाहिए. अगर आप जो इक्विटी में सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो करेंसी पे लगाओगे तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली, या कमोडिटी पे लगाओगे तो नहीं चलेगा. जो इंडियन मार्केट में सिस्टम है वो यूएस में चलाओगे तो शायद सिमिलर फैशन में नहीं चलेगा. जनरली यू हैव टू ऑप्टिमाइज फ्लोस के हिसाब से वो मार्केट्स मूव सो आपको, आई डोंट कॉल इट कर्व फिटिंग, आई विल कॉल इट ऑप्टिमाइजेशन. क्यों? क्योंकि इसमें पहले इन सैंपल होता है, बाद में आउट सैंपल होता है, फिर बेटा टेस्टिंग होता है, फिर लाइव होता है. हर एक फेजेस है. अगर ये सब टेस्ट पास हो जाता है फिर ही आप उसको लाइव करते हो, उसके बगैर नहीं करते हो. तो हम थे यहाँ के, हम लोग ने 50 मूविंग एवरेज के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर प्राइस गया वीकली क्लोजिंग विच इज़ फ्राइडे. आपको मंडे से फ्राइडे कुछ नहीं करना है. फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद, डेटा आने के बाद, सैटरडे आप आराम से बैठिए. अपना जो यूनिवर्स है उस पर ये कितने स्टॉक क्वालिफाई हो रहे हैं. सो 5 स्टॉक है, मतलब एक स्टॉक को 20% जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये था, ये तो कभी लू का आंसर आ गया. कौन से स्टॉक लू वो आंसर आ गया, कभी लू आंसर आ गया, कितना लू. अगर आप 5 स्टॉक लेना चाह रहे हो तो हर एक को 20% एलोकेशन दे दिया, तो वो भी आंसर आ गया. नाउ एंट्री तो ले लिया, एग्जिट कभी लू. एग्जिट है इनिशियल स्टॉप लॉस विच इज 20% ऑफ एंट्री प्राइस. अगर मेरा वीकली क्लोज उसके नीचे आता है तो मैं बेच देता हूँ उसको. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा मैं एग्जिट कभी लूँ. अभी दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ और प्राइस मेरे फेवर में आया, सो उसमें भी देखो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, वो चीज राइडिंग द विनर्स एंड कटिंग द लूजर्स शॉर्ट, विच इज द की टू और मे बी सीक्रेट सोर्स ऑफ जनरेशनल वेल्थ जो लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में बनाया है. उसका सीक्रेट सोर्स यही है, दे राइड द विनर्स एंड कट द लूजर्स शॉर्ट. बट यहाँ पे तो आपका फर्स्ट एंट्री में 20% एलोकेशन हो गया, तो पिरामिडिंग के लिए स्कोप नहीं है. तो पिरामिडिंग करना, पिरामिडिंग आपको करना है तो अलग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, लेकिन आपके पास 80% पैसा और पड़ा है ना, विच कैन बी डिप्लॉयड इन अदर स्टॉक्स. हाँ, that is true. हाँ. But let's say I'm getting a momentum burst in one particular stock. Yeah. Generally, जो लोग momentum So if there is a momentum burst in a particular stock and you are not pyramiding, still you want to ride the winners and get the benefit out of it. Do you systematically cut down your position? मतलब एक 2R 3R multiples पे आप नहीं exit नहीं करते हैं? नहीं, that is where we ride the winners. But you don't pyramid. I don't pyramid. Okay. So वो क्या होता है, जो इनिशियल 20% एलोकेशन है ना, वो भाव बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक एलोकेशन 20 का 22, 22 का 25, then it starts forming a large part of your portfolio. And that moves the P&L of your portfolio. और जो स्टॉक बढ़ गया है, विनर्स को राइड करना है लेकिन प्रॉफिट भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं फिर, कि भाई स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं. स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं? अगर फेवर में आ गया तो देन वी ट्रेल इट टू 100 वीक मूविंग एवरेज. तो योर फर्स्ट इज योर इनिशियल स्टॉप लॉस विच इज 20%, सेकंड इज 100 वीक मूविंग एवरेज, थर्ड इज एवरेज ट्रू रेंज. अगर मानो कोई खराब न्यूज़ आ गया और आपका 100 वीक मूविंग एवरेज बहुत दूर है और एक वीक में स्टॉक बहुत गिर गया, तो यू वांट टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग एवरेज ट्रू रेंज एंड उसका स्टैंडर्ड सेटिंग 14 and 1 होता है. वी आर यूजिंग 14 and 1.8. तो ये भी ऑप्टिमाइज्ड फिगर है विच वॉज ऑप्टिमाइज्ड वे बैक इन 2016. बाद में हम लोगों ने सेटिंग चेंज नहीं किया है. एंड बिलीव मी इट इज़ वर्किंग लाइक चार्म. एंड आपका पोर्टफोलियो बन गया. आपका ये जवाब भी आ गया कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है, कभी लेना है, कितना लेना है, कभी तक राइड करना है. अभी टाइम फ्रेम की बात करते हैं. लाइक अगर कोई बंदा मुझे वीकली नहीं चाहिए, मैं डेली में करता हूँ, हाँ, तो डेली में भी आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. हाँ, ऑफ कोर्स. वो टाइम फ्रेम का अलग चैलेंजेस रहता है. अलग चैलेंज रहता है. उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा रहेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट मिल जाएगा. तो फ्लिप्स, लेकिन सिंस द वी आर यूजिंग वेल प्रूवन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, व्हाई नॉट मंथली? तो फिर मंथली भी चलेगा, एक्चुअली चलेगा. लेकिन देखो मंथली में आपको पूरा महीना वहाँ ड्रॉ डाउन बहुत डीप हो सकता है. टाइम ड्रॉ डाउन एंड टाइम ड्रॉ डाउन हो सकता है. अगर कोई एक महीना खराब हो गया, तो आपको सेंसिबली प्ले करना है. इन अनसर्टन वर्ल्ड लाइक दिस,
एक महीने में मार्केट 35% गिर जाता है, Hmm. तो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो एज वेल. Then if you're looking from that point of view, Yeah. then daily seems much a better डेली version, में right? एक चैलेंज ये है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने ज़्यादा आते हैं और अपने यहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो दैट कैन किल योर रिटर्न्स. Hmm. एंड ड्रो डाउन तो उतने ही आते हैं जितने वीक में आते हैं, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देन दैट विल बिकम अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ सिस्टम, दैट विल नॉट Because मैं ये बिकम. सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉट टू रिफ्यूट योर सिस्टम, नहीं, I'm- बट जस्ट टू अंडरस्टैंड. लेट्स से एक बंदा सिस्टम बनाता है, तो हाउ डज हिज ब्रेन फंक्शन? Yes. वो किस दिशा में सोचता है? बिकॉज Yeah. लॉट ऑफ पीपल दे वांट रेडीमेड सिस्टम्स, बट वंस पीपल स्टार्ट आस्किंग ऑल दीस क्वेश्चंस, दे कैन फिगर आउट ऑल दीस आंसर्स बाय देमसेल्व्स. यू कैन गो टू लोअर टाइम फ्रेम ऑल्सो, 75 मिनट्स जा सकते हो, 1 हाँ, आवर जा सकते हो, exactly, 30 मिनट्स exactly. जा सकते हो. सिंस यू देखो, लेकिन इसमें अगर आप 30 मिनट्स पे जा रहे हो तो आप 20% स्टॉप लॉस नहीं रख सकते. देन इन दैट केस योर स्टॉप लॉस हैज टू बी टाइटर. करेक्ट. आपका 50 मूविंग एवरेज शायद ये नहीं यूज़ करेंगे, आप शायद 200 यूज़ करेंगे वहाँ पर, क्योंकि टाइम फ्रेम 30 मिनट्स से है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिस्टम. irrespective of time frame, principle will remain the same. You can use छोटे टाइम फ्रेम पे वो ट्रेडिंग सिस्टम बन जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टिंग सिस्टम बन जाएगा, और मंथली टाइम फ्रेम, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे वो इंस्टीट्यूशनल यूज़ कर सकते हैं, वैसा सिस्टम बन जाएगा. समझ गया. बट अभी ये बताइए राकेश जी, लेट्स से आपने एक सेटिंग के साथ सिस्टम चला रहा है एंड कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक वो काम करना बंद किया. हाँ, नाउ यू फील दैट अरे कुछ तो मार्केट में फंडामेंटल चेंज आया है, समथिंग इज चेंजिंग, लाइक द फ्लोज आर चेंजिंग, देयर इज समथिंग फंडामेंटल दैट हैज चेंज्ड. नाउ आई नीड टू रीविजिट माय सिस्टम एंड ट्वीक द पैरामीटर्स. राइट. व्हाट इज द टाइम पॉइंट वेयर यू विल टेक दिस डिसीजन? सो मैं हमेशा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं पास्ट में जाता हूँ, डेटा में, और डेटा में देखता हूँ कि पास्ट में क्या हुआ है, एंड अभी जो करंटली हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली डेविएट हो रहा है पास्ट से. अगर डेविएट हो रहा है देन वी ट्राई एंड असेस के इज देयर एनी regime change, like introduction of zero DT was a regime change. Now reduction in zero DT is also a regime change. बट आपका तो जनरली लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है Weekly ना, time. तो इट शुड नॉट अफेक्ट. I'm just saying कि when you develop any system, Got it, maybe you got it. don't Generalized, develop option हाँ, system, I understand. अगर regime change है हाँ ठीक है. तो ये वीकली चेंज बार बार मैंने तो 2016 से चेंज नहीं किया है, और मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि चेंज करना चाहिए. बीच बीच में 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं भी आएंगे, विच इज़ लाइक लॉन्ग ओनली में रिटर्न नहीं आते, वो तो सिस्टम में भी रिटर्न नहीं आएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिस्टम है. लेकिन बाय एंड लार्ज अभी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है मुझे 2016 से. और जो ट्रेडिंग सिस्टम है जो ऑप्शन के, स्टॉक फ्यूचर्स के, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ट्विक करना पड़ता है रिजीम चेंज के हिसाब से. अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम ज़्यादा चल रहा है रादर देन लिटिल लॉन्गर टाइम फ्रेम इन लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर्स, क्योंकि वी शेप रिकवरीज हो रहा है, वी शेप डाउन जा रहा है. ना वही लेट्स से आपने 5 इंस्टेंसेस देखे लास्ट एक महीने में, बराबर लास्ट महीने आपने देखे होंगे 3 इंस्टेंसेस. बराबर. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट वेयर अब मैं इसको नहीं चला सकता, नाउ आई हैव टू गो बैक टू माय ड्राइंग बोर्ड एंड देन आई हैव टू मेक द चेंजेस. Yes, एब्सोल्युटली. When is that? So when your estimated drawdown hits 2x, 2x of your drawdown. yes, so that is where you start questioning. सिर्फ नॉर्मल ड्रॉडाउन और टाइम ड्रॉडाउन भी 2x गया तो भी चेंज कर लेते हो? टाइम ड्रॉडाउन तो एक बार मैं एक्सेप्ट कर लूंगा 1.5 टाइम 2 टाइम्स, लेकिन टाइम ड्रॉडाउन भी अगर 2 टाइम्स हो गया तो देयर इज समथिंग हैज चेंज्ड. ओके, दैट इज टाइम ड्रॉडाउन 2 टाइम्स नहीं दे सकते आप. टाइम ड्रॉडाउन 1.2 1.3 टाइम्स देख ले, और प्राइस ड्रॉडाउन 2x देख ले, क्योंकि टाइम ड्रॉडाउन कभी कभी 100 दिन होता है तो 200 दिन तक तो वेट नहीं करेंगे आप. अगर वो 130 140 होने लगा देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि समथिंग हैज चेंज फंडामेंटली, either regulation has changed or market participants has changed, maybe some smarter player has come in and they are hunting you algos. So it's a continuous process. So जब आप चेंज करने जाते इसीलिए किसी और का चुराया हुआ सिस्टम में लोग पैसा नहीं बना सकते. एग्जैक्टली. सो जब आप सिस्टम चेंज करने जाते हो, डू यू क्वेश्चन the nitty-gritties of the system first, or do you question the first principle itself? First of all, every system should have decent edge. First of all, कि भाई अगर एज नहीं है आपके सिस्टम में मैकेनिकल ट्रेडिंग से, तो एज आपको डिफाइन करना जरूरी है कि एज सफिशिएंट है कि अगर थोड़ा चेंज रिजिम चेंज हुआ तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव तो नहीं आ जाओगे. अगर थोड़ा स्लिपेज बढ़ गया, थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो ये सब सेंसिटिविटी एनालिसिस है जो करना पड़ता है. मोंटे कार्लो सिमुलेशन करना पड़ता है कि भाई पास्ट में ये हुआ है लेकिन देयर कैन बी डिफरेंट सिनारियोस इन फ्यूचर, द पाथ ऑफ रिटर्न कैन बी डिफरेंट इन फ्यूचर्स. तो आप मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी करना चाहिए लोगों को. तो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग योर पेन पॉइंट्स
एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर दोज पेन पॉइंट्स तभी आपको सिस्टम लाइव करना चाहिए. एब्सोल्युटली. सो स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिए, तो अभी lot of budding new traders are there Yeah. who have not seen as many market cycles as you. Yes, sir. And अभी तो it's a situation of turmoil, global turmoil चल रहा है and there is a lot of jitteriness in the markets. तो आप क्या बोलना चाहते हो? सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो आपको कोई भी सिचुएशन को नेविगेट करना है तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस आता है नॉलेज से, ठीक है. तो नॉलेज कम्स विथ टाइम, मतलब ओवरनाइट नहीं होता है. आपको बिट बाय बिट नॉलेज. अभी जो टर्मोइल हो रहा है वो वंस इन जनरेशन काइंड ऑफ रीसेट हो रहा है कि जो यूएस डॉलर का रिजर्व करेंसी पे जो पूरा सिस्टम था और अमेरिका बीइंग द कंज्यूमर एंड चाइना बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, both are fighting and both want to exchange the role. कंज्यूमर को प्रोड्यूसर बनना है और प्रोड्यूसर को अभी कंज्यूमर बनना पड़ेगा, तो वहाँ काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे. तो बिजनेसेस को काफ़ी फ़र्क आएगा. तो बिजनेसेस को फ़र्क आएगा तो बिज़नेस मॉडल आगे पीछे हो सकते हैं और काफ़ी बिजनेस यहाँ से 100x हो सकते हैं और जो काफ़ी 100x हो चुके बिजनेस 0 हो सकते हैं. ऐसा कुछ वंस इन जनरेशन काइंड ऑफ चेंजेस है. तो वहाँ पर थोड़ा आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, थोड़ा समझ डेवलप करना ज़रूरी है. नहीं समझ में आता है प्रोफेशनल हेल्प ले लो, वो बेटर है. और ऐसे में सबसे पहला बेट, अगर आप ट्रेडर हो तो बेट साइज कम कर दो. इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद से 100, यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद 20 राइट नाउ, क्योंकि रिटर्न भी बनेगा तो 20 पे 100 जितना ही बनेगा और रिस्क भी 20 पे 100 जितना ही आएगा. वोलेटिलिटी है. हाँ, वोलेटिलिटी, क्योंकि रेंज बढ़ गया है. वोलेट विच इज़ इविडेंट इन विक्स, राइट. वहाँ पर यूएस का विक्स 50, 52, 54 हो गया है. यहाँ अभी भी हम इतना होने के बावजूद 20 पे है, थैंक्स टू ऑप्शन सेलर्स. तो या बेट साइज डेफिनेटली ऐसे अनसर्टन एनवायरनमेंट में कम कर देना चाहिए. इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, थोड़ा आराम से. और पोर्टफोलियो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, सोच के लिए ही बनाना चाहिए, घाई नहीं करना चाहिए. एंड इट पेज टू बी इन कैश इन सच टाइम्स एंड इट पेज टू बी इन असेट्स लाइक गोल्ड इन सच टाइम्स. गोल्ड देख ही रहे हो अब कैसे हो, अनसर्टेनिटी कुछ भी होता है. एंड ये पूरा जो झमेला हो रहा है ट्रंप का और डॉलर का और चाइना का, कुछ समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि क्लियर विनर इज़ गोल्ड एंड सेकंड क्लियर विनर इज़ इंडिया. क्योंकि अगर चाइना को रिप्लेस करना है एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू सम एक्सटेंट अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज. पूरा तो हम भी नहीं कर पाएंगे. बट India would not be the primary choice of China, right? So they'd go to Philippines, they'll go to Vietnam. So there did not be choice of China, but it can be choice of US, it can be choice of Europe, who are consumers of China, Chinese product right now. So and see, इसमें कल ही मैंने एक ट्वीट भी किया है. सबसे बड़ा करेंसी क्या होता है दुनिया में? ट्रस्ट होता है. अगर कोविड के बाद चाइना पे से लोगों का ट्रस्ट थोड़ा हिला है कि मतलब इन बैड टाइम्स दे कैन चॉक द सप्लाई लाइन्स एंड ऑल दैट, तो इंडिया हैज़ टर्न आउट टू बी अ रिलायबल पार्टनर. एंड शायद इसीलिए काफ़ी लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, लेकिन ये बहुत लार्ज ट्रेंड है. इट डजंट प्ले आउट इन अ वीक, 2 months, 3 months, 6 months, 2 years. It plays out in 10 years, 20 years, 30 years. So India has a bright future. World is trusting India like never ever before. And we are the youngest, मतलब हम लोग youngest population है दुनिया के. हमारा average age of India is 27 years. And we are going to remain youngest, 2047 तक youngest रहने वाले. तो देर आर नया फ्रंटियर्स काफ़ी खुल रहा है. सो द नेचर ऑफ जॉब चेंजेस. अभी एआई के साथ हो सकता है कि जो मैकेनिकल कोडिंग करता है उसका जॉब जा सकता है, लेकिन जो एआई प्रॉम्प्टिंग करता है ना, इट्स अ न्यू कैटेगरी. मतलब एआई प्रॉम्प्टिंग जो कर पाएगा, अंदर से डेटा से राइट क्वेश्चन पूछ के राइट सॉल्यूशन निकाल पाएगा, वैसे बंदे का वैल्यू हो जाएगा काफ़ी. तो ओल्डर कैटेगरी, जैसे अभी काफ़ी कुछ रोबोटिक प्रोडक्शन हो जाएगा, तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा, आर्ट बढ़ जाएगा, स्पोर्ट्स बढ़ जाएगा. तो ये जो हम लोग खाली बेसिक नेसेसिटी के एंगल से देख रहे थे दुनिया को, लेकिन देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लिविंग लाइफ. खाली ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब ही करना है एंड काम ही करना ज़रूरी नहीं है. अगर ऐसा कुछ आगे जाके यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी मुझे लग रहा है आगे जाके आ सकता है कि वेयर योर बेसिक नेसेसिटीज़ आर टेकन केयर ऑफ. आपको काम करना है खाली एस्पिरेशंस के लिए. तो वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट अकॉर्डिंग टू मी. Let's hope that we continue to reap the benefits of demographic dividend. Absolutely. And I am hopeful कि हमारा जो यंगर जनरेशन है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी एस्पिरेशनल है
एंड स्मार्ट वर्कर है. ऐसा नहीं है कि वो 14 घंटा 18 घंटा काम करेंगे, लेकिन 6-8 घंटा काम करके भी अच्छा चीज़ निकालने की कैपेसिटी रखता है. एंड आई हैव अ faith in our ability as a civilization. We have survived for so many years, thousands of years we are there, and we have been doing business, and we are primarily an enterprising country, and we will survive all these changes also. Absolutely. So it was a wonderful conversation. Thank Rakesh you, thank you, Prabhu. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.